Okay, so last time we have seen the partition of the integers. So let's see one more thing. One more example for partition. We have given two sets E and O. E is a set of all integers which are even. तो इवन इंटीजर का सेट क्या होता है? 0 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 4 प्लस और माइनस 6 एंड सो ऑन. ओके, व्हाट इज ऑड नंबर्स? Odd numbers, the numbers which are not divisible by 2. So we can write this as 1, 3, 5, 7, dot, dot, dot. It is all on the positive side. And we can also take the negative odd numbers, minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, and dot, dot, dot. Okay. So these are two sets, even number and odd number. Now tell me whether this even number and odd number set, can it be a partition of this particular integer, set of integer? Yes. Yes. How you will check? Yes. We will check the every number. First we will check 0. 0 even number में, 1 odd number में, 2 even number में, 3 odd number में, 4 even number, 5 odd number, 6 even odd. All numbers are getting covered. Positive side के सब number cover हो रहे हैं. If I take E union O, take the odd numbers, negative numbers. So 0, minus 1, minus 2 even है, minus 3 odd है, minus 4 even है, minus 5 odd है, minus 6 even है. So we can cover all the negative number in the union E union O. So I can write that we have Z is equal to set of integer is equal to E union O. So first condition is satisfy. Partition का दो condition है. Union should give you the original set. And what is the second condition? What is the intersection of E intersection O? क्या होगा? Is there any Empty. common number? No. So therefore it satisfies both the condition. Therefore E comma O is partition of Z. Is partition. Okay. So we got this particular question. Now let's come back to our next concept. The concept of power set. So for any set, we define the power set of A, which is denoted by script of, ये script P है, script P of A, which is the set which contain all the subset of A. So कोई भी set का power set क्या होता है? Power set is the set which contains all its subset. So एक एग्जांपल लेते हैं तो ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा. ओके, कंसीडर दिस सेट x, y. इसका अगर पावर सेट आपको लिखना है तो पावर सेट कैसे लिखेंगे? व्हाट आर द सबसेट पॉसिबल ऑफ दिस सेट x, y के कितने सबसेट्स होंगे? एक. Let us write a set. Can I say empty set is a subset of x, y? Empty set is a subset of any subset. Therefore, empty set is a subset of x, y. Can I say singleton x is a subset of x, y? Yes or no? Anyone? Hello? Yes, sir. वॉइस हाँ तो बोलो. Yes. Can I say y is a subset of x, y? Yes or no? Yes, sir. Can I say Yes, sir. full set x, y is a subset of x, y? So we got these four possibilities. Any other possibility there? कोई और possibility है subset की?
नो, वी हैव कवर्ड ऑल द पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी कवर कैसे करते हैं? टू सेट्स है, इसमें टू एलिमेंट्स है, तो पहले हम लोग जीरो एलिमेंट वाला सेट लेंगे, फिर वन एलिमेंट के सभी सेट कवर करेंगे, फिर टू एलिमेंट्स के सभी सेट कवर करेंगे, देन वी आर गेटिंग ओवर। So these are four subset in the power set of x comma y. In general, अगर set A में n elements है, so I can denote it by cardinality of A is equal to n. Then I will get the power set of A will contain 2 raised to n elements. मतलब इसमें 2 elements है, 2 square is 4. 4 element आपको पावर सेट में मिलेंगे। अगर A में 5 elements है तो कितने elements मिलेंगे पावर सेट में? Anyone? What is 2 raised to 5? अभी आप बहुत सारे कन्वर्जन कर रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको 2 के पावर पता होने चाहिए, 2 के पावर्स आपको याद रखने चाहिए, अप टू 10 तो याद ही रखने चाहिए, ठीक है? 2 raised to 5 is 32, तो 32 elements in the power set of it. So let us solve some example, तो आपका ये कंसेप्ट जो है पावर सेट का वो क्लियर हो जाएगा। What is the power set? Anyone can reply. What is the power set? It is a set containing all its subset. Okay. So let's come back here. Let's answer these two questions. आज इतने अटेंडेंस कम क्यों है? 21 only present here. What happened? Why there is so much less attendance today? आज तो ग्रुप ने मैसेज भी नहीं किया कि ज्वाइन नहीं हो रहा है। लेट अस सी आपको कैसे फटाफट आईडी मिले उसके बारे में देखते हैं हम लोग, फिर ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है? सो लेट्स कम बैक टू हियर. Consider this set A is equal to 1, 2, B is the set 2, 3. Find each of the following. क्या क्या फाइंड करना है? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A यूनियन B एंड पावर सेट ऑफ A क्रॉस B. ये चार सेट आपको फाइंड करना है। तो पहले में क्या पूछा है? A इंटरसेक्शन B. पहले मुझे बताओ व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? 2 सिंगलटन 2 सिंगलटन 2. अभी पावर सेट निकालना है इसका। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पावर सेट? 2 एलिमेंट। सेट में अगर एक एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे? 2 एलिमेंट रहेंगे। तो कौन से 2 एलिमेंट रहेंगे? हमेशा पहला सेट क्या होना चाहिए? एम्प्टी सेट होना चाहिए, एंड सेकंड सेट क्या होगा? सिंगलटन 2. ओके, लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर थिंग. व्हाट इज पावर सेट ऑफ ए? क्या होगा? ए में कितने 2 एलिमेंट है, तो पहले क्या लेना है आपको? पहले तो एम्प्टी सेट लेना है एज इट इज। सेकंड चीज क्या करनी है? सब 1 एलिमेंट सेट। कौन कौन से 1 एलिमेंट सेट पॉसिबल है? 1 and 2, and then consider all the 2 element set. 2 element सबसेट क्या होंगे? 1, 2. तो ये हो गया। Let's take A union B. What is A union B? 1 2 3 1 2 3, करेक्ट। अभी इसका पावर सेट बनाना, कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी के? 8 एलिमेंट। सो 8 एलिमेंट कैसे लिखना है? लेट्स सी। पहले तो एम्प्टी सेट लिखो। अभी मैं क्या एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे मैंने पावर सेट ऑफ ए लिखा है। ए में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सेट ना मैं ऐसे के ऐसे लिखता हूँ, 1 2 एंड क्या था? 1, 2. ये मैं 2 बार रिपीट करूंगा, ठीक है? 2 बार रिपीट करते हैं। एम्प्टी सेट 1, थोड़ा गैप रखते हैं, 2 थोड़ा गैप रखते हैं, 1 2 थोड़ा गैप रखते हैं,
और ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं, रुको, ये क्या है यहाँ पे, इसको साइड में देते हैं। 1 2, थोड़ा गैप रखते हैं। अभी जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ये हमने क्या बनाया, 2 कॉपीज बना दी। अभी एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन सा है, 3। वो जो सेकंड कॉपी हमने बनाया ना उसमें ऐड कर दो 3। एम्प्टी सेट में 3 ऐड किया तो मुझे क्या सेट मिलेगा, इफ आई ऐड एम्प्टी सेट में 3 Singleton is 3. सिंगलटन, 3. then I can add this singleton 3 over here, I can add in this and I can add in this। क्या मुझे 8 डिफरेंट एलिमेंट मिल गए ए यूनियन बी के। अगर 4 एलिमेंट होते तो मैं क्या करता, पहले 3 एलिमेंट का पावर सेट लिखता हूँ, एक एलिमेंट को छोड़ देने का, और फिर क्या करने का, 2 कॉपीज लिखने का वो पावर सेट का, एक एलिमेंट कम वाले पावर सेट का, और दूसरे कॉपी में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो ऐड करते जाने का। दिस इज द टेक्निक वेयर वी कैन राइट द सेट। अदरवाइज यू कैन डू, पहले एक एलिमेंट का सेट लिखो 1 2 3 लिख दिया, बाद में 2 एलिमेंट एट अ टाइम लिखना है 1 2 1 3 एंड 2 3, एंड देन 3 एलिमेंट एट अ टाइम। ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो आपके ऊपर है कैसे आपका मेथड, कैसे आपको कौन सी ट्रिक आपको पसंद आती है उसके हिसाब से आप लिखना है। व्हाट इज द लास्ट सेट इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज ए इंटरसेक्ट, सॉरी, ए क्रॉस बी, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे डिफाइन किया था। इट इज द ऑर्डर पेयर वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। 1 2 1 3 2 2 and 2 3। Is this correct? Am I written the correct Cartesian product? Yes, sir. ओके Yes, अभी अभी इसको क्या करना है, आपको पावर सेट में कन्वर्ट करना है। सो पावर सेट कैसे आएगा, व्हाट इज पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। अपना ट्रिक यूज करो। क्या यूज करना है, पहले तो एम्प्टी सेट लिखना है, फिर ऑल द सिंगलटन सेट। So I can write 1 2 as a singleton set, then 1 3, then 2 2, and then 2 3। सब सिंगलटन सेट कवर हो गए। इज ऑल सिंगलटन सेट कवर्ड। Yes. sir. हमेशा याद रखो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकंड एलिमेंट है, ये आपका थर्ड एलिमेंट है, एंड ये आपका फोर्थ एलिमेंट है। देयर आर 4 एलिमेंट्स। तो आपको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे पावर सेट में, 16 एलिमेंट। 2⁴ इज 16। तो 16 कंप्लीट करना है। अभी लिख दिया ये। अभी क्या करना है, 2 एलिमेंट एट अ टाइम। तो पहला दूसरा साथ में लेते हैं। पहला दूसरा साथ में लिया तो क्या होगा, 1 2 1 3। फिर क्या करते हैं, पहला एंड तीसरा लेते हैं। पहला एंड तीसरा क्या होगा, 1 2 2 3 2 2 सॉरी 2 2। ओके, देन पहला एंड चौथा लेंगे। पहला एंड चौथा क्या होगा, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा। पहले तो एम्प्टी लिखना है, फिर पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, देन 1 को सबके साथ कंबाइन करना है, 1 2 1 3 1 4। फिर 2 को आगे वाले से कंबाइन करना है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 3 2 4। और फिर 3 को कंबाइन करना है, हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ना है, 3 4 हो गया। अभी 3 एलिमेंट वाले सेट लिखते हैं, 1 2 3 1 2 4। और क्या पॉसिबिलिटी है, 1 3 4, देन 2 से चालू करो, 2 3 4, राइट। और क्या पॉसिबिलिटी है 3 से, 1 2 3 1 2 4 1 3 4। ये 3 एलिमेंट हो गए। 2 से स्टार्ट हुए, कौन से हो गए, 2 1 4 तो कवर है,
और कौन सा बचेगा? ठीक है, 4 एलिमेंट ठीक है। कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करेक्ट। और लास्ट में ऑल 4 एलिमेंट 1 2 3 4। तो दिस कवर्स योर पावर सेट इन जनरल। ओके, तो अभी मैं इसी के तरह लिखता हूँ। 1 2 हो गया अपना, 1 3 हो गया। अभी कौन सा है नेक्स्ट इन द क्वेश्चन? 1 4। so I can write 1 2 into 2 3 फर्स्ट एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट ले लिया। अभी नेक्स्ट कौन सा सेट बनाएंगे? सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का सेट बनाएंगे। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है? 1 3 goes with third element that is 2 2। नेक्स्ट क्या बनाएंगे? सेकेंड एंड फोर्थ का बनाते हैं 1 3 एंड 2 3। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? अभी कौन सा बचेगा? 1 3 हो गया, 2 4 हो गया। तो नेक्स्ट क्या है? 3 4। 3 4 क्या है? 2 2 एंड 2 3। यू कैन डू विथ यूर सेल्फ। मैथ्स का ऐसा है कि आप जब तक खुद से नहीं करोगे आपको कुछ नहीं समझेगा। देन 1 2 3। अभी 3 एलिमेंट एट ए टाइम। 1 2 देन 1 3 देन 2 2। ओके, कॉमा। देन 1 3 4 बोला। 1 3 4 क्या है? सॉरी 1 2 4। 1 2 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3। लेट अस स्क्रॉल डाउन। कोई तो अटेंडेंस, कोई तो है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लिया। अभी नेक्स्ट करते हैं। कौन सा लिया मैंने? 1 3 4 लिया। 1 3 4 के बाद क्या है? 2 3 4। तो आई कैन राइट 1 3 2 2 एंड 2 3। कंसेप्ट वही है, आपको सबसेट कवर करने हैं। एंड लास्ट एलिमेंट इज होल सेट। होल सेट का क्या आएगा? 1 2 कॉमा 1 3 कॉमा 1 सॉरी 2 2 कॉमा। ओके, so this covers the whole set. पहले हमने all singleton कवर कर लिए। 1 2 3 4 4 singleton sets are possible. Then we covered all the 2 element set। 2 element set 6 elements में है। 1 2 3 4 5 6। इन सब सेट्स में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। देन हमने को 3 एलिमेंट के सेट पढ़ने। 3 एलिमेंट के कैसे किए? 2 3 एक रह गया है, एक रह गया है। 3 एलिमेंट्स के 3 ही सेट कवर हुए हैं। 1 2 3 1 2 1 3 1 3। एक एलिमेंट रह गया है, सो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। 1 2 1। इसका क्या था? 1 2 3। देन ये क्या है? 1 2 4। ये क्या है? 1 3 4 सॉरी 2 3 4 है। 1 3 4 कवर नहीं हुआ है, तो आई विल राइट 1 3 4। 1 2 2 2 और 2 3। तो जब भी आपका सेट बड़ा बन जाता है तो एलिमेंट्स रेट रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत ही टफ हो जाता है। ओके, तो दिस कंप्लीट्स ऑल द 16 एलिमेंट। तो लेट मी रिवाइज दिस। पहले तो एम्प्टी सेट लिखा। ओके, देन वी हैव टेकन
all the elements which contains two sets, सिंगलटन सेट. तो सिंगलटन सेट हाईलाइट कर देते हैं. ये सिंगलटन है, ये सिंगलटन है, सिंगलटन है, सिंगलटन है. ओके, then we highlight with different color all the set which contains two elements. तो पिंक ले लेते हैं. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correct? All the elements, all the sets here are containing two elements at a time. Then we cover the 3 element set. So 3 element set we cover कर देते हैं. So let's take blue. 3 element वाले कितने सेट है? 1, 2, 3, 4. 4 elements are containing all 3 elements. And lastly आपने को क्या लिखना है? Covers whole of the set, जिसमें चारों के चारों होंगे. So let's see this color, orange color ले लेते हैं, which covers all the. So understood? You have covered all the 1 element set, then you have covered all the 2 element set, then you have covered all the 3 element set, and then you have covered all the 4 element set, and your power set is complete. Okay, so be patient while writing the power set. एक और एग्जांपल करते हैं पावर सेट का, फिर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. 32 का ए पार्ट करूं या बी पार्ट करूं, आप कौन सा करेंगे बताओ मुझे. बी पार्ट करो सर. बी पार्ट करते हैं, यही कंसेप्ट से करेंगे. पहले तो एक्स क्रॉस वाई लिखो. एक्स क्रॉस वाई क्या करना है, अभी आप मेरे साथ बताओ. एक्स क्रॉस वाई कैसे लिखोगे? फर्स्ट एलिमेंट फॉर फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द सेकंड सेट, राइट. तो ए को कंबाइन करो एक्स के साथ एज वेल एज वाई के साथ. तो आई कैन राइट दिस एज ए कॉमा एक्स. नेक्स्ट क्या होगा? ए कॉमा वाई, देन बी कॉमा एक्स, एंड देन बी कॉमा वाई. 4 एलिमेंट आ गए. आपको क्या लिखना है अभी? इसका पावर सेट लिखना है. तो पहले सेट लिख दिया. अभी इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं. ये एक्स क्रॉस वाई क्लियर है सबको? Yes. Okay, so let's write the power set in different color. Power set of x cross y. अभी देखते हैं. पहले मैंने क्या बोला पावर सेट लिखते वक्त? पहला सेट कौन सा होगा? empty. Empty. Then we have to take all the singleton set. Singleton set कितने पॉसिबल है? 4 पॉसिबल है. लिख दो. Four. a कॉमा एक्स, देन a कॉमा वाई. इसको अपने को क्या लिखना है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरा राउंड ब्रैकेट और ये जो ब्रेसेस है वो मिक्स हो जाता है. ये क्या है? b कॉमा एक्स, देन b कॉमा वाई, राइट. तो आपने क्या किया? ऑल द एलिमेंट्स आर कंबाइंड. नाउ क्या करना है? अभी नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट अपने को 2 सेट्स एट ए टाइम लेना है. कंट्रोल Z. क्या दो वो लिख नहीं रहा है. ठीक है. तो मैं क्या बोला आपको? 2 सेट्स कैसे लिखेंगे? 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, and lastly 3 4. These 6 sets are possible. अगर मुझे बोलो 1 2 फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ax एंड इसको कंबाइन करना है ay. तो एक कवर हो गया. लेट मी क्लियर इट आउट. नेक्स्ट अभी कौन सा कवर करना है? 1 3, 1 एंड 3 कंबाइन लिखो. a कॉमा एक्स एंड b कॉमा एक्स, राइट. समझ रहा है ना? 1 कॉमा 3 हो गया. अभी क्या है? 1 कॉमा 4 क्या होगा? a कॉमा एक्स एंड b कॉमा वाई.
ये भी हो गया, 1,4 हो गया, 1,4 को काट देते हैं। अभी क्या है, 2,3, 2,3 लिखो, 2,3 सेकेंड एलिमेंट इज a, y एंड b, x हो गया कवर। अभी नेक्स्ट क्या बचा है, 2,4। तो नंबर से जैसे 1 2 1 3 ये फास्ट होता है ना, तो आप उसको कन्वर्ट करो, 2,4 दैट इज a, y एंड b, y। So I will write a, y and I will write b, y। ठीक है। अभी लास्ट क्या है, 3,4 दैट इज bx एंड by। अभी आपको मैं एक और कंसेप्ट बता देता हूँ, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेट्रिक्स का कंसेप्ट। ओके, हाउ मेनी वन सबसेट्स आर पॉसिबल इज गिवन बाय द नंबर 4C1। देयर आर 4 एलिमेंट्स, आपको उसमें से एक एलिमेंट को चूज करना है। कितने पॉसिबल वेज है, 4C1 इज इक्वल टू 4। इफ यू वांट टू चूज 4 एलिमेंट्स है एंड उसमें से आपको 2 एलिमेंट चूज करने, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, 4C2 इज इक्वल टू 6। 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर। आप अगर कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो 4C2 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इज 24 अपॉन 4, वो 6 होता है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स मिले आपको, 1 2 3 4 5 6, which contains 2 elements from this set. Then what is 4C3? कितने पॉसिबिलिटीज है 3 सिलेक्ट करने की, आई कैन राइट दिस एज 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करो, आपको मिलेंगे 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर। विच आर दोस 4 पॉसिबिलिटी, लेट अस सी। वो 4 पॉसिबिलिटी कौन सी है। तो ये जो रफ वर्क किया है वो हटा देते हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है विच यू कैन रेफर। ओके, लेट अस टेक अनदर कलर। अभी क्या है, अपने को 3 सिलेक्ट करने, तो पहले तो मैं 1 2 3 ले सकता हूँ, फिर 1 2 4 ले सकता हूँ, फिर 1 3 4 ले सकता हूँ, और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, 2 3 4। ये 4 पॉसिबिलिटीज है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज के सेट लिखते हैं। पहली कौन सी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3। 1 2 3 लिखो। 1 2 3 एलिमेंट क्या है, a, x, देन a, y, देन b, x। लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया, खत्म। नेक्स्ट क्या है, 1 2 4। 1 2 4 लिखते हैं। व्हाट इज 1 2 4, ax, ay एंड by। तो वो लिख दो, ax, ay एंड by। ओके, अभी क्या पॉसिबिलिटी बची, 1 3 4। 1 3 4 लिख दो, क्या है पॉसिबिलिटी, ax, देन ay एंड कौन सा बच्चा, मैं 1 3 4 लिख रहा हूँ ना, ay नहीं आएगा, सॉरी, BX सर, bx आएगा, राइट, bx एंड व्हाट इज नेक्स्ट एलिमेंट, by। ओके, करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या बचेगा, लास्ट क्या है, 2 3 4, ay, bx एंड by। So I will write ay, bx, by and okay. Next is whole set. Whole set I can write x cross y. In short you can also write, जैसे empty set लिखते हो empty set से, वैसे whole set को आप x cross y लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर पूरा सेट लिख दो 4 एलिमेंट का। अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। आप ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आते हैं यहाँ पे कैसे
कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी कंसेप्ट यूज किया है, पावर सेट का भी कंसेप्ट यूज किया है, मतलब टू सेट्स कंबाइन, टू कंसेप्ट्स आर कंबाइन, देयरफॉर इतना थोड़ा ध्यान से आपको लिखना पड़ता है, बट द थिंग इज सेम। नंबर सेट है तो तुरंत कर दो, अगर ऐसे सेट है तो उसको नंबरिंग करो, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, वो नंबर सेट का क्या पावर सेट आएगा वो लिखो और फिर उसके साथ ये मैच कर दो एलिमेंट, आपको ऑल 16 एलिमेंट मिल जाए। ओके, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, हाँ sir. ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अभी इसमें प्रूफ है सब। ओके, लेट अस गिव मोर एग्जांपल ऑन प्रूफ। This algorithm I am not taking. This is the exercise. इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया 31, 32, बहुत सारे क्वेश्चन है, बट इतने सब हमको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट। सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन ऑफ इंटरसेक्शन। I will explain this property through the Venn diagram. Let this be the set U, let this be the set A, and let this be the set B. Okay, what is A intersection B? It is all the common part between A and B, right? Can I say this A intersection B is a subset of A? Yes. Can I say A intersection B is a subset of B? Yes. So this property is known as inclusion of intersection. जो इंटरसेक्शन है वो A का भी हिस्सा होगा और वो B का भी हिस्सा होगा, ठीक है। So this first property is clear. Let's draw the second set. This is my set A, this is my set B. What is the A union B? कौन सा सेट होगा? All the highlight region, right? All the elements which are in A, which are in B, plus all the elements common will give me A union B, right? Can I say Yes, A is a subset of A union B? Yes. Can I say B is a subset of A union B? Yes. Yes, sir. So this is called as inclusion of union property. Let us take the transitive property. ये बहुत screen ये हो गया. Let us take the transitive property. Let we have the three sets. This is my set A. What does transitive property says? If this set A is in set B and this set B is inside the set C, can I say that A is a subset of C? A is completely Yes. lying inside the B. B is completely lying inside the C. Then I can say that A is a complete lies inside the C. This property is known as transitive property of this set. Okay. So this subset relation के अभी कुछ prove करेंगे. Let's see. First वाला prove करते हैं. Okay. For all sets A and B, show that A intersection B is subset of A. हमने सबसेट रिलेशन कैसे प्रूव किया था, किसी को याद है? हाउ वी प्रूव द सबसेट रिलेशन A is subset of B, कैसे प्रूव करेंगे? एनीवन? कल हमने प्रूव किया था बहुत सारे सेट A is subset of B के लिए क्या करते हैं हम लोग? Sir, first we write. First we have to show that A intersection B is A. So हम लोग प्रूफ कैसे स्टार्ट करते हैं? We have started with any element, any arbitrary element in the first set. First set कौन सा है इधर? Set Let A. intersection B. This is your first set. A intersection B
इसको आपको सबसेट दिखाना है, किसका सबसेट दिखाना है, ए का सबसेट दिखाना है। तो कोई भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी से लो, सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, बी आर्बिटरी एलिमेंट। आर्बिटरी का मतलब क्या है कि आपने कौन सा एलिमेंट चूज किया, आपने ऐसे बोलते हैं ना, आपके पास बहुत सारे, एक बाउल में बहुत सारे क्वांटिटीज है और आप एक चूज कर रहे हो, तो उसके लिए कोई ये नहीं है, मतलब बिना देखे आपने सिलेक्ट कर दिया, दैट इज आर्बिटरी। व्हेन आई से x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, व्हाट डू आई मीन बाय दिस स्टेटमेंट? कैन आई से दैट x बिलोंग्स X टू a and x बिलोंग्स टू b? तो अगर इंटरसेक्शन है तो मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अगर यहाँ पे यूनियन होता तो मैं क्या लिखता, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यूनियन है तो और लिखते हैं, इंटरसेक्शन है तो एंड लिखते हैं। अगर a माइनस b होता तो क्या लिखता मैं, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, दैट इज a माइनस b, राइट। तो वो जो स्टेटमेंट Yes, आपने sir. पढ़ा है यूनियन इंटरसेक्शन, वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। दिस इज इम्प्लाइज दैट एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में है। क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए ओनली? दोनों में तो एक लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. Therefore, what we started with x belongs to a intersection b and we have end up with x belongs to a. Therefore, every element, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है प्रूफ में, every element in a intersection b is also in a. Therefore, a intersection b is subset of a. Can you prove the on the similar line a intersection b subset of b? अगर ये एग्जाम में पूछा तो आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेटमेंट as it is, second statement as it is. What is third statement will you write? Instead of x belongs X, to a, you will write x belongs X to। belongs to B. फोर्थ स्टेटमेंट क्या लिखोगे? every element in a intersection b is also in which set? b. B. Therefore, a intersection b is subset of b. So understood this proof? Yes, sir. नाउ अगर आपको प्रूव करना है, प्रूव करने बोला है ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, हाउ यू विल प्रूव? कैसे प्रूव करोगे अगर ये पूछा तो? First sentence as it is. नहीं, अभी क्या है, फर्स्ट सेट कौन सा है? X belongs फर्स्ट A. स्टेटमेंट क्या लिख, एक्स बिलोंग्स टू ए A is arbitrary. B. Can I write this as x belongs to a or x belongs to b? Yes. x तो a में ऑलरेडी है, तो x a में होगा या फिर b में होगा, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। क्योंकि Yes. और जब बोलते हैं तो कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो भी अपने को और ट्रू होता है, एंड बोलते तो क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, राइट। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। Therefore आप क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट इन a इज आल्सो इन a यूनियन b, वही सब लिखना है। एवरी एलिमेंट इन a is also in a union b. Therefore we can write this as every element of a is also in a union b. Therefore we can write this as a is a subset of a A union. union B. Okay.
तो इंक्लूजन ऑफ, आपने बोथ ऑफ वे इंक्लूजन जो प्रॉपर्टी हमने देखा था दोनों प्रूव कर दिया. A union B इंटर सबसेट ऑफ A एंड A इज अ सबसेट ऑफ A union B. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी वैसे ही प्रूव करो. A इज अ सबसेट ऑफ B दिया है, B इज अ सबसेट ऑफ C दिया है, तो आप A में से कोई एलिमेंट लोगी, ये आपको प्रूव करना है. इफ एंड देन का स्टेटमेंट का प्रूफ क्या रहता है कि आपको जो दिया रहता है वो इफ पार्ट होता है, आपको प्रूव जो करना रहता है वो देन पार्ट होता है. तो ए पार्ट को आप अज्यूम करो, देन पार्ट को प्रूव करो. दैट्स इट. सो दिस आर द समथिंग विच यू कीप इन माइंड कि अगर आपको दिया है कि x बिलोंग्स टू x यूनियन y, देन आप क्या लिखोगे नेक्स्ट लाइन, x बिलोंग्स टू x और x बिलोंग्स टू y. ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, दोनों तरफ ट्रू है. अगर आपको दिया रहेगा x बिलोंग्स टू x और x बिलोंग्स टू y, देन यू कैन राइट x बिलोंग्स टू x यूनियन y. अगर इंटरसेक्शन दिया रहेगा x बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, then what you can write, in between you have to write and. Okay, in between you have to write and. What about this set, x belongs to x minus y अगर दिया रहेगा तो आपको क्या लिखना है, x belongs to x and x does not belong to y. इसका मतलब क्या है, x में है पर y में नहीं है. If you have given x belongs to x complement, then what you write, x does not belongs to x. और लास्टली अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, x comma y belongs to x cross y, if and only if first element x will belongs to x and second element y will belongs to the second set y. Okay, understood this procedural version? मतलब आपको प्रूफ Yes, लिखते sir. वक्त ये स्टेटमेंट आपको लिखने हैं. ओके, दिस इज द प्रोसीजरल वर्जन. तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे प्रूफ लिखते हैं. जैसे मैंने समझाया कि पहले हम लोग को पहले सेट में से एलिमेंट लेना है, देन वी हैव टू शो दैट दिस एलिमेंट इन द सेकंड सेट. तो लाइक दिस, सपोज x इज एनी एलिमेंट, हम आर्बिटरी लिखते हैं, इसका मतलब भी वही है, x इज एनी एलिमेंट इन दिस, देन we have to write something 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 and we have to finally arrive at the x belongs to A. Whatever you statement you write, you need to write the explanation. Okay, ठीक है. So this is how this particular proof is written. Statement लिखा है, उसका explanation लिया है. A, B are any set, this is your starting point. We have what we have to show, that is the second statement. Then उन्होंने एक arbitrary element लिया, कौन से इसमें लिया, A intersection B में. What does this mean? That is x in A as well as x in B. दोनों भी ट्रू है तो उसमें से एक पार्ट तो ट्रू होगा ही. So in particular you can write this, x is in A. Therefore every element of A intersection B is in A. Hence we can write A intersection B subset of A. तो उन्होंने वैसे एक्सप्लेन किया है. तो ये बुक देखोगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, 1000 पेज का बुक है, बट उसमें से थोड़ा थोड़ा ही आपको करना है. तो लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, सेट आइडेंटिटी. आइडेंटिटीज मतलब प्रॉपर्टी की तरह आप यूज कर सकते हो. मतलब कम्यूटेटिव लॉ, तो आपको जो रीजनिंग देना होता है ना, वो आइडेंटिटीज से देना. व्हाट इज द कम्यूटेटिव लॉ? A union B is same as B union A. A intersection B is same as B intersection A. Can you tell me any example where this commutative law doesn't hold? मतलब कोई भी आप मतलब ऑपरेशन ले लो, ये सेट के ऑपरेशन है, वैसे आप नंबर्स के ऑपरेशन ले लो या कोई भी और चीज जहाँ पे आपको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? एनीवन?
यहाँ पे सेट्स में तो होल्ड करता है, यूनियन के लिए भी होल्ड करता है, इंटरसेक्शन के भी लिए होल्ड करता है। मतलब पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, पता नहीं। एक और चीज में होल्ड करता है, लेट मी गिव यू द एग्जांपल। एडिशन में होल्ड करता है। यू हैव a plus b is same as b plus a. This property is known as commutative property. Multiplication. मल्टीप्लीकेशन में Sir, भी होल्ड करता है। ए बी इज सेम एज बी ए। किसमें होल्ड नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है। ए माइनस बी नीड Division. नॉट बी इक्वल टू बी माइनस ए, निगेटिव B साइन आ minus जाएगा। A. ओके, तो सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है। सिमिलरली डिवीजन में भी होल्ड नहीं करता है। a by b is not equal to b by a. So commutative property holds in addition, multiplication, but not in subtraction or division. So जब Division. दोनों ध्यान में रखना है, कहाँ पे होल्ड करता है, कहाँ पे होल्ड नहीं करता है। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगेन एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है क्या, आप बोलो। एडिशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब मैं ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे पहले दो को ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड को ब्रैकेट लगाया। मतलब क्या है, मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व कर, मैं पहले ए यूनियन बी लूंगा, उसका इंटरसेक्शन सी में लूंगा, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं पहले बी यूनियन सी लूंगा तो मुझे कोई तो सेट मिलेगा, वो जो रिजल्टेंट सेट है उसको मैं ए के साथ यूनियन करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड मिलेगा। And both are this equal set. A union B union C is same as A union B union C. This is called as associative property. Again, addition में associative property hold करता है। I can write A plus in the bracket B plus C is same as if I add two numbers first, A and B, and then I can add the C. So addition में hold करता है। Is this property hold in subtraction? It is not hold in subtraction. कल ही हमने एग्जांपल देखा था क्यों सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता। 1 2 3 लेके देखा था। 1 - 2 - 3 इन द ब्रैकेट इज नॉट इक्वल टू 1 - 2 पहले किया और बाद में 3 सब्ट्रैक्ट किया। तो ओके, तो अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन द सब्ट्रैक्शन। एक मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ। ये जो है ना, आपने देखा सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव भी होल्ड नहीं करता, एसोसिएटिव भी होल्ड नहीं करता। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ले लो। जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो कम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट एसोसिएटिव सेटिस्फाई होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। A in bracket BC is same as A into B into C. So आपको तीन मैट्रिक्स है ABC अगर दिए है आपको, all of the same order, then we have A into BC is same as AB into C. उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है बट कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता है। ओके, तो दिस काइंड ऑफ एग्जांपल यू हैव टू लर्न, मतलब उसको अलग अलग कंसेप्ट के साथ उसको जोड़ना है। ठीक है, लेट अस see the third property. Third property says distributive loss. Distributive loss क्या बोलता है, A union B intersection C is same as A union B intersection A union C. मतलब क्या किया मैंने, यहाँ पे हाईलाइट करके देखते हैं। We have combined this A union, इतना बड़ा क्यों हो जाता है, A union we have combined with B and then A union combined with C. A union यहाँ पे कॉमन है, A union with B and A union with C. फर्स्ट पार्ट के साथ कंबाइन किया, सेकंड पार्ट के साथ कंबाइन किया, बीच में इंटरसेक्शन है। सिमिलरली A intersection you can combine with B and A intersection you combine with C and बीच में का साइन क्या रहेगा, यूनियन का साइन। This is called as a distribution of union over the intersection. This second is called as a distribution of intersection over the union. तो वो सब इतना सब चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आपको प्रॉपर्टी आ गई बस हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके लिख सकते हो। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव। दिस आर कॉल्ड आइडेंटिटी लॉज। इफ यू टेक यूनियन विद द एम्प्टी सेट you will get same set back. If you take intersection with universal set then you will get same set back.
तो सेम सेट बैक कौन से इसमें करेंगे? तो आई कैन राइट दिस एम्प्टी सेट इज आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन. यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन. जैसे मैं बोलता हूँ 0 इज आइडेंटिटी with respect to addition and 1 is identity with respect to multiplication. समझा ये? अगर आप एडिशन में कोई भी नंबर को आप 0 Yes, ऐड yes. करोगे तो आपको सेम नंबर वापस मिलेगा. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम नंबर वापस मिलेगा. तो इसको बोलते हैं Yes, sir. आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन. तो यूनियन के विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी क्या है? एम्प्टी सेट. इंटरसेक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू ये क्या है? आइडेंटिटी क्या है? यूनिवर्सल सेट. ओके, ये ध्यान रखो. एम्प्टी सेट इज आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन. यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन. कॉम्प्लीमेंट लॉ तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा. ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनियन Universal. set and A intersection A complement is always empty. क्योंकि आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वट एवर इज नॉट पार्ट ऑफ ए इज योर कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे ए है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों को मिलाएंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा. अगर दोनों को कॉमन लेंगे तो कॉमन तो कोई चीज है नहीं, इसलिए एम्प्टी सेट मिलेगा. ओके. डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ. डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको सेम सेट वापस मिलेगा. दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज गिव्स बैक टू यू ए. ठीक है. फिर से हमें ही रिवाइज करना पड़ेगा. ओके. तो फिर ऑल्टरनेट को लेकर Yes, sir. करेक्ट. ऑल्टरनेट नहीं मैं आपको नहीं. Then next is idempotent law. A union A is equal to A. A intersection A is equal to A. जैसे 1 into 1 is 1, 0 plus 0 is 1, 0. वैसे टाइप ऑफ थिंग. ठीक है. These are laws which we have to remember. Universal bound law. हाँ. Yes. सर वो जो A डबल कॉम्प्लीमेंट है उसका कोई हाँ. एक एग्जांपल बताएंगे आप? A डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A. Okay, let us take the example. Let us take U. बहुत बड़ा हो गया ये. U is equal to, say I will take the set 1, 2, 3, 4, 5. This is my universal set. Let me take A. A set is what? Say I will take 1, 3, 5. Can you define the complement? A complement क्या होगा? 2, 4. 2, 4. What is A complement का complement? A complement ब्रैकेट का complement. 2, 4 का complement लेंगे आप, right? 1, 3, 5. 2, 4 complement which you get 1, 3, 5. 3, 5. What is 1, 3, 5? A. A. तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको सेम सेट वापस मिलता है. जैसे इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? आपने डबल टाइम इनवर्स लिया, मैट्रिक्स में आपने सीखा होगा. A इनवर्स का इनवर्स इज सेम सेट बैक. सिमिलरली A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज सेम सेट बैक. तो कोई भी चीज आप बहुत बार मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा होता है कि डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ ट्रू होता है. मतलब 2 बार वही ऑपरेशन करोगे आपको सेम वापस मिलेगा. ठीक है. Okay, sir, understood. Okay. Next is universal bound laws. A union with U is union U, and A intersection with empty set is empty set. Okay. Then this is De Morgan's law. De Morgan's law क्या होते हैं? आपने बहुत बार लॉजिक में पढ़ा होगा. हाँ सर पढ़े, याद नहीं आ रहा है. डी मॉर्गन. Yes. P and Q complement is same as, sorry, negation of P and Q is same as negation of P or negation of Q. क्यों? And आपका
आपका दूसरा लॉ क्या है, P और Q, negation of P और Q is same as negation of P and negation of Q. सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन बन गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है तो उसका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। जैसे एंड का और होता है, और का एंड होगा, वैसे ही डी मॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी में भी है। अंडरस्टूड? तो इसको लॉजिक के साथ Yes, कंपेयर sir. करो, दोनों को साथ में रखो, लॉजिक को और इसको, क्योंकि लॉजिक हम बाद में पढ़ने वाले हैं। इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिक। आफ्टर सेट थ्योरी वी विल मूव ऑन टू द लॉजिक। ओके, अब्सॉर्प्शन लॉ। Okay. अब्सॉर्प्शन लॉ क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज ए। तो इसको थोड़ा वेन डायग्राम से समझेंगे ना तो फटाफट समझता है। व्हाट आई एम टेकिंग दिस, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे हम लोग, ए यूनियन विथ, हम कौन सी यूनियन ले रहे हैं, ये जो शेडेड पार्ट है उसका यूनियन ले रहे हैं। तो ए का इसके साथ यूनियन क्या होगा, ए ही मिलेगा ना वापस। ए यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट ही ले रहे हैं, उसमें कोई और ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहे, तो इसलिए व्हाट वी विल टेक, वी विल गेट ए। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी? सो लेट अस टेक द सेकंड सेट। दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। ए यूनियन बी मतलब मैं पूरा सेट ले रहा हूँ, तो हम डबल कलर यूज करते तो दैट आपको पता चलेगा। लेट अस टेक दिस कलर। सो ए इंटरसेक्शन भी कौन से कलर में देखता हूँ, लेट आई विल ड्रॉ द ब्लू लाइन, जिसमें हमारा जो सेट है वो कौन सा सेट है, ए यूनियन बी। अभी उसका साथ इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ, मतलब ए में जो चीज है वो कॉमन सेट में आ जाएंगे। तो मैं ब्लू येलो कलर लेता हूँ, ए का सेट ये कर देता हूँ। सो व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट, ब्लू एंड ए पार्ट में कौन सा कॉमन है, ये ए वाला पार्ट इज कॉमन, राइट? So this is how you will get this law, absorption law. A union A intersection B is same as A, and A intersection A union B is same as A. Okay. Then complements of universal set and empty set. Universal set का complement होगा empty set, empty set का complement होगा universal. Okay. जैसे लॉजिक में जीरो का निगेशन क्या होगा, फॉल्स का निगेशन इज ट्रू, ट्रू का निगेशन इज फॉल्स, वैसे ही यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज ये empty set, and empty set का complement is universal set. Universe. Set difference law, a minus b is same as a intersection b complement. ये हमेशा याद रखो, ये लॉ बार बार यूज होने वाला है, सेट डिफरेंस लॉ, क्योंकि हम लोग को बार बार वो डी मॉर्गन्स में लाना होता है सेट को। व्हाट इज a minus b set? You are getting this set a, this is set b, and यहाँ पे आपका जो रीजन हाईलाइट किया है वो क्या है, ये जो A है। नाउ लेट अस ड्रॉ अनदर डायग्राम राइट हैंड साइड के लिए। व्हाट इज B कॉम्प्लीमेंट? ये जो B है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सभी पार्ट जो B में नहीं है वो सभी उसके क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट में होंगे। अगर ये B कॉम्प्लीमेंट का मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ A से, तो मेरे को कौन सा पार्ट जो हाईलाइट पार्ट है वही मिलेगा ना इंटरसेक्शन में, which are present in Yes, sir. both the set A as well as B complement. तो ये पार्ट हुआ A इंटरसेक्शन B. So what, दोनों सेम है ना, हाईलाइट पार्ट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, तो A minus B सेम एज A इंटरसेक्शन विथ B complement. B complement. So इसका कोई भी प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टी है उसका, किसी का भी प्रूफ लिखने आ सकता है, ठीक है? तो प्रूफ कैसे लिखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द लॉजिक एंड दिस बुलियन अलजेब्रा एक टॉपिक है सेट थ्योरी के बाद, उसके बाद हम लॉजिक में शिफ्ट होते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसको हम रसेल पैराडॉक्स बोलते हैं, तो वो होगा तो आपका आधा यूनिट खत्म हो जाएगा। So we'll take 2 more lectures to complete this half unit of set theory. Then we can move on to the half unit which is based on logic. ठीक है? So let's stop here. Yes, sir. Just 1 minute till I download the attendance. Be here. Okay, now you can go.
Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. See you in the next meeting.